नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। रविवार सुबह सिलीगुड़ी के 40 नंबर वार्ड के 2 नंबर के ज्योति नगर इलाका में एक व्यक्ति अपने घर के छत पर टावर बैठाने को केंद्र करके इलाके में हलचल मच गई। उस इलाके के स्थानीय निवासियों का आरोप है कि जो व्यक्ति अपने घर के छत पर टावर बैठा रहे हैं वे व्यक्ति आसपास के किसी भी इलाके वासी से इस विषय को लेकर ना ही उन्होंने कोई चर्चा किया है और ना ही किसी से अनुमति लिए हैं। बिना किसी अनुमति के ही उन्होंने गैर सरकारी कंपनी का टावर बैठाने का कार्य आरम्भ कर दिए थे। दूसरी तरफ जो व्यक्ति अपने घर के छत पर टावर बैठाने का कार्य आरंभ किए थे उस घर का मालिक का दावी है कि सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर का परमिशन एवं अन्य परमिशन भी उनके पास है। इस खबर की सूचना मिलते ही 40 नंबर वार्ड के वार्ड कोऑर्डिनेटर सत्यजीत अधिकारी एवं भक्तिनगर थाना का पुलिस घटना स्थल पर उपस्थित होती है। टावर बैठाने को लेकर इस इलाके में कुछ देर तक उत्तेजना फैला रहा। बाद में वार्ड कोऑर्डिनेटर सत्यजीत राय एवं भक्तिनगर थाना की पुलिस की उपस्थिति में परिस्थिति को संभाल दिया गया। এবার হচ্ছে 40 নম্বর ওয়ার্ডের এই সেকেন্ড জ্যোতিনগরে আজকে একটা টাওয়ার বসা নিয়ে একটা ঝামেলা এখানে সৃষ্টি হয়েছে। এই কমপ্লেন আমার কাছেও গেছিলো। তাদেরকে আমি বলেছিলাম যে আপনারা যে প্রসিডিওর আপনার কমপ্লেন হচ্ছে কর্পোরেশনেও জানান, আপনারা হচ্ছে থানাও জানান। এনারা যথারীতি থানাতেও জানিয়েছে, কর্পোরেশনেও জানিয়েছে, ঠিক আছে, সব জায়গায় এনাদের জানানো হয়েছে। কিন্তু যে টাওয়ারের ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে যে যার বাড়িতে হচ্ছে বা যিনি টাওয়ারটা বানাচ্ছেন তারা হচ্ছে আশেপাশের কোনো লোকালিটির কাছে কোনো রকমের পারমিশন ছাড়াই এই কাজটা করছে। এখানে আশেপাশের পুরো পাবলিক এর উপরে ক্ষেপে গেছে যে কোনোভাবে ওরা টাওয়ারটা করতে দেবে না। এবার হচ্ছে আমরা জনপ্রতিনিধি, কারণ আপনারা জানেন যে জনপ্রতিনিধি যেদিকে জনগণ থাকবে আমাদেরকে সেদিকেই থাকতে হবে। কারণ জনগণ যদি না চায় যে এখানে টাওয়ারের ব্যাপারটা, তাহলে এখানে টাওয়ারটা হবে না। আর যদি বাড়ির মালিক সে যদি আশেপাশের সবাইকে নিয়ে তাদের যদি এনওসিটা নিয়ে সে যদি করতে পারে তাতেও আমাদের কোনো অবজেকশনটা থাকবে না। আমরা চাইছি যে বাড়ির মালিক আছে, ঠিক আছে, সে পাড়া প্রতিবেশীর কাছে নিয়ে নিক এনওসিটা, তাহলে সে করতেও পারে। আর একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যে আজকে এই বিল্ডিংয়ে আসার পর লক্ষ্য করলাম যে এখানে অনেক ধরনের ভাড়াটিয়া এখানে বসবাস করছে। এবার কী ধরনের ভাড়াটিয়া কেমনভাবে আছে সেটাও আমাদের কিন্তু অন্ধকারে রাখছে। যে কোনো রকমের খারাপ কোনো কিছু হয়ে গেলে তখন কিন্তু পুরো দোষটা আমাদের কোঅর্ডিনেটরের উপরে বর্তায়। তো আমি বাড়ির মালিককে বলে দিব এখনই যে আপনার কাছে যারা ভাড়াটিয়া আছে তাদের কি নথি আছে সেটা নিয়েও আপনি কাউন্সিলর অফিসে আসেন, ঠিক আছে, সেই এগ্রিমেন্ট কপিগুলো আমরা দেখব এখানে ভাড়াটাকে কিভাবে ওরা এটাকে চালাচ্ছে। বড় একটা বিশাল বিল্ডিং, সে ভাড়াটাও কিভাবে চলছে সেটাও একটা দেখার ব্যাপার আছে। অবজেকশন হচ্ছে যে এই পাড়ার কোনো কারো কাছে কোনো না জিজ্ঞাসা করে আশপাশের লোকের না কোনো অবজেকশন সার্টিফিকেট না নিয়ে এখানে একটা বিশাল টাওয়ার তৈরি করা হচ্ছে। আমাদের সেটা প্রবলেম আছে। আমরা পাড়া প্রতিবেশী হিসাবে এই টাওয়ারটাকে আমরা অবজেকশন করতেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পাড়ার আশপাশে 10টা বাড়ির অবজেকশন সার্টিফিকেট না নেবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই টাওয়ার আমরা করতে দিচ্ছি না। হ্যাঁ, কর্পোরেশন থেকে পারমিশন আছে, কোম্পানি নিচ্ছে, কিন্তু দেখাতে তো পারলেন না কর্পোরেশনের পারমিশন। দেখাচ্ছি তো, এই যে দেখেন, হ্যাঁ পারমিশন আছে। এটা কি পারমিশন? তারা কি কর্পোরেশন থেকে পারমিশন আছে? দেখেন, এটা তো বলছে যে এলাকাবাসীর পারমিশন লাগবে আপনাদের। এখানে তো লেখাই রয়েছে একদম বড় করে। এটা কোম্পানি করে, তো কোম্পানি বলে নাই। না কর্পোরেশন থেকে কি লিখছে? আপনি এডুকেটর, আপনি তো জানেন, বলতে পারবেন। কি কর্পোরেশন থেকে কি লিখেছে ওখানে? কি লিখেছে দেখেন না? আমি তো দেখলাম, আপনি ছবি নিয়ে নেন, আপনি দেখে নেন। ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এসেও তো দেখলেন। ঠিক আছে, আপনি ছবি নিয়ে নেন, দেখে নেন। এই যে আর যে আছে দেখে নেন। এই যে ठंड के साथ पिकनिक का एक संबंध रहता ही है। फलस्वरूप ठंड पड़ते न पड़ते पिकनिक में डूब पड़ते हैं नागरिक, परंतु पिकनिक करने के दौरान कभी कभी मौज मस्ती की जगह पड़ जाता है रंग में भंग। दक्षिण 24 परगना के बौखखाली में शनिवार पिकनिक पर निकले एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुआ। स्थानीय सूत्रों से जानकारी मिलती है कि दक्षिण रघुनाथपुर के बौखखाली में पिकनिक करने जाने के दौरान अचानक नारायणपुर के नीमतौला स्टॉपेज के पास सुबह तकरीबन 7 बजे दूसरी एक गाड़ी को ओवरटेक करने के दौरान गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पिकनिक का गाड़ी उलट जाता है। इसमें 20 व्यक्ति जख्मी हुए। इस गाड़ी में 20 पर्यटक थे। जख्मी 20 व्यक्तियों को स्थानीय निवासियों ने कागदिक महकुमा अस्पताल में भर्ती किए। जख्मी 20 व्यक्तियों में 4 व्यक्तियों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिलती है। दूसरी तरफ और एक दुर्घटना की खबर मिलती है। नामखाना के 10 माइल के पास नियंत्रण खोकर एक गाड़ी नौयनजली में गिर जाता है। यह गाड़ी भी कमार घाटी से बौखखाली में पिकनिक के लिए जा रहा था। इसके बाद स्थानीय निवासियों द्वारा गाड़ी को नौयनजली से निकाला गया।
गया। इस दुर्घटना में गाड़ी में उपस्थित 2 पर्यटकों को बाहर निकालकर स्थानीय एक अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल के चिकित्सक जख्मी व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा कर उन्हें छोड़ देते हैं। एक ही दिन घटित 2 दुर्घटना से जख्मी व्यक्ति के परिवार वाले बहुत ही चिंतित है। सब मिलाकर घटित इस दुर्घटना से इलाके में शोक की लहर छा गई है। सच्चाई क्या नहीं करवाती है, लोगों का विवेक मजबूत करता है एवं इसके फलस्वरूप समाज बहुत उपकृत होता है। चैनल बांग्ला द्वारा ऐसा ही एक उपकार देखा गया जलपाईगुड़ी शहर में। घटना था कि एक पैसे से भरा हुआ मनी बैग सड़क पर पड़ा हुआ था, जो मिला जलपाईगुड़ी शहर के सोना दुकान के कर्मी राम प्रसाद दास को। उनका विवेक छटपटा रहा था जिस व्यक्ति का यह बैग है उसे वापस लौटाने के लिए, और हुआ भी यही। घटना के ठीक 3 दिन बाद जिसका मनी बैग है वह एक महिला है। सिर्फ पैसा सहित मनी बैग ही नहीं, उस बैग में रखे समस्त जरूरी कागज एवं कार्ड उसी तरह पाकर वह महिला अत्यंत खुशी है एवं धन्यवाद जनाए उस सोने के दुकान के कर्मी राम प्रसाद दास को। उल्लेखनीय है कि पिछले गुरुवार काम खत्म करके समाज पारा अपने घर वापस आने के दौरान दिसारी मोड़ पर पैसे से भरा हुआ मनी बैग पड़ा हुआ देखकर उठा लेते हैं राम प्रसाद बाबू। इसके बाद उस असली मालिक की खोज करने लगते हैं। अंत में संवाद माध्यम से प्रकाश करने की घटना से जानाजानी होने लगती है। इधर जिसका मनी बैग खो गया है वह महिला भी पूरी चिंतित एवं बेचैन थी। फलस्वरूप संवाद माध्यम से प्रचार के कारण वह महिला देवश्रुति घोष, जो एक स्थानीय नर्सिंग होम की कर्मी है, वो अपने खोए हुए फोन की खबर जान पाई। इसके बाद वह महिला राम प्रसाद के साथ संपर्क करती है। खबर पाकर राम प्रसाद बाबू भी दौड़कर चले आते हैं उस मनी बैग को लेकर। तब तक संवाद माध्यम की प्रतिनिधि भी हाजिर हुए। खोए हुए बैग में क्या क्या था, सभी तथ्य की सही प्रमाण देवश्रुति द्वारा दिए जाने पर सारे प्रमाण सही मिल जाने के बाद राम प्रसाद राय ने देवश्रुति घोष को उनके हाथ में उनका मनी बैग लौटा दिए। বৃহস্পতিবার দিন আমি মেরিনা থেকে ডিউটি করে আসার সময় রাতের বেলায় ব্যাগ থেকে আমার টাকা ভর্তি মানি ব্যাগটা পড়ে যায়। তারপরের থেকে আমি খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলাম। আজকে ভোর সকালবেলায় আমার দেওর এইটা জানতে পেরে আমাকে জানায়, তখনই আমি ওনার কাছে আসি। উনি আমাকে সেই মানি ব্যাগটা আমার হাতে তুলে দিলেন। আজ আমি খুবই খুশি। এই করোনার সময় সবারই খুব খারাপ অবস্থা। এই সময়ে যে আমি পাবো এই টাকাগুলো আমি ভাবতে পারিনি। আজকালকার দিনে এরকম মানবিক লোক পেয়ে আমি খুবই খুশি। ওনার ভালো হোক, ওনার পরিবারের খুব ভালো হোক। আর এই খবরটি আমি জানি মিডিয়ার মাধ্যমেই আমি জানি, তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। আপনার নাম দিদি? আমার নাম দেবশ্রুতি ঘোষ। কি ছিল মানি ব্যাগে? মানি ব্যাগে আমার 13,000 টাকা ছিল, আর কিছু খুচরো পয়সা ছিল, আর একটা গ্রিন কার্ড ছিল, একটা এটিএম কার্ড ছিল, আর ছবিও ছিল। যা জিনিস তাকে দিতে পারছি খুবই ভালো লাগছে, আনন্দ লাগছে। আমি প্রচণ্ড খুশি এবং আমার পরিবারও খুব খুশি। भर संध्या इंग्रेज बाजार शहर के ग्रीन पार्क इलाका से एक महिला का मोबाइल छीनकर भाग गए 2 बदमाश। महिला द्वारा उस बदमाशों को रोकने पर महिला को मारधाड़ करने का भी आरोप लगा है। उस महिला ने इंग्रेज बाजार थाना में रात में ही मौखिक रूप से सारी घटना को बताया। इंग्रेज बाजार थाना का पुलिस छानबीन पर उतरकर 40 मिनट के भीतर ही उन बदमाशों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उस महिला का चुराया गया फोन भी बरामद करती है। इसके अतिरिक्त उन बदमाशों के पास से और भी 3 चुराए हुए मोबाइल फोन बरामद किया गया। इंग्रेज बाजार थाना का आईसी मदन मोहन राय कहते हैं कि इन 2 बदमाशों में से एक का नाम रिकी भास्कर है एवं उसका घर शहर के ग्रीन पार्क इलाका में है, एवं दूसरे आरोपी का नाम चिरंजीत घोष है एवं उसका घर मोथाबाड़ी थाना के पंचनंदनपुर इलाका में है। शनिवार शाम को शहर के ग्रीन पार्क इलाका से एक महिला घर लौट रही थी, तभी वे 2 बदमाश उस महिला को सड़क पर रोककर उनके बैग से उसका मोबाइल फोन लेकर भाग जाते हैं। 40 मिनट के भीतर ही इंग्रेज बाजार थाना का सफेद पोशाक का पुलिस रविवार 2 आरोपियों को गिरफ्तार करती है एवं उन्हें मालदा जिला अदालत में हाजिर करती है। গতকাল সন্ধ্যাবেলা 7টা থেকে 7:30টার সময়
একটি মেয়ে, তার বয়স হবে 20 থেকে 21 বছর, সে জেলখানার সামনে দিয়ে আসছিল পাশ দিয়ে। হঠাৎ করে দুটি ছেলে ওই মেয়েটিকে ওখানে রাস্তার মধ্যে দাঁড় করিয়ে তাকে 2-1 থাপড় মেরে তার পকেট থেকে কিছু টাকা আর একটি ভালো দামি স্মার্টফোন স্যামসুং, সেই ফোনটি ছিনতাই করে নিয়ে চলে যায়। আমাদের কাছে একটা জাস্ট মৌখিক অভিযোগ আসে যে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে, এই জায়গাতে মেয়েটির মোবাইলটা ছিনতাই হয়েছে। আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের হওয়ার আগেই আমার যে পিসি পার্টি আছে তারা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায়, বেরিয়ে গিয়ে আসামি সমেত ধরে নিয়ে চলে আসে এবং যে মোবাইলটি ছিনতাই করেছিল সেটাও নিয়ে আসে এবং তার সঙ্গে আরও 4টে মোবাইল ধরে নিয়ে আসে এবং সেটা নিয়ে আমরা প্রপার সেকশনে কেস করেছি এবং মেয়েটা এসে তার মোবাইল এবং যে লোকটা ওকে যে ছেলেটি আটকে মোবাইল ছিনতাই করেছিল তাকে আইডেন্টিফাই করে যে হ্যাঁ এই ছেলেটি আমার মোবাইলটি ধরেছিল, এই ছিনতাই করেছিল এবং এটাই আমার মোবাইল। তো কেস করেছি, ওদের দুজনকে আমরা কোর্টে পাঠাচ্ছি। भारत बांग्लादेश के बीच हल्दीबारी चिलाहाटी रूट पर ऐतिहासिक रेल जोगाजोग आरंभ होने के साथ साथ एक और पलक जुड़ने जा रहा है रानीनगर हल्दीबारी रूट पर। बहुत दिनों से इस रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन माध्यम से ट्रेन चलाने की परिकल्पना तैयार किया गया था। यहाँ तक कि रेल बजट के लिए बराद्द किया गया था 30 करोड़ रुपये, परंतु इस इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से रेल चलाने का कोई संरचना व्यवस्था ही नहीं देखा गया। इस विषय पर जलपाईगुड़ी हल्दीबारी नागरिकों का भ्रम दूर किए जलपाईगुड़ी के माननीय सांसद डॉक्टर जयंत राय। उन्होंने चैनल बांग्ला के दिए गए एक साक्षात में उन्होंने दावी किया कि रानीनगर जलपाईगुड़ी से हल्दीबारी तक रेल जोगाजोग इलेक्ट्रिफिकेशन माध्यम से चलने के लिए संरचना व्यवस्था की तैयारी के लिए फिलहाल टेंडर प्रक्रिया आरंभ हो गया है। उनका दावी है कि अगले वर्ष के दिसंबर महीने तक इस रूट में इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य संपन्न हो जाएगा। फलस्वरूप 2022 साल के मार्च महीने से रानीनगर हल्दीबारी रूट पर रेल भ्रमण का उम्मीद कर रहे हैं इलाके के नागरिक। उल्लेखनीय है कि रानीनगर हल्दीबारी के बीच की दूरी मात्र 34 किलोमीटर है। हल्दीबारी स्टेशन बांग्लादेश के चिलाहाटी स्टेशन से युक्त होते ही एक नया रूप में दिखाई दे रहा है। एकाधिक प्लेटफॉर्म जिस प्रकार तैयार हुआ है उसी प्रकार बढ़ रहा है स्टेशन के भीतर रेल ट्रक की संख्या। आधुनिक क्वार्टर छोड़कर भी रेल ड्राइवर एवं गार्ड के लिए उन्नत प्रकार का रनिंग रूम तैयार किया गया है, जहां पर खाने पीने की व्यवस्था से लेकर अतिरिक्त और भी सुविधाएं प्रदान किए गए हैं। फलस्वरूप आने वाले दिनों में हल्दीबारी स्टेशन से बहुत दूरपल्ला की गाड़ी के यातायात की संभावना बढ़ गया है और हल्दीबारी रानीनगर रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य संपन्न होते ही इस रूट पर तैयार होगा एक नया इतिहास। সেটা টেন্ডার কমপ্লিট হয়ে গেছে, হ্যাঁ টেন্ডারের কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি আশা করছি যে 2021 ডিসেম্বরে বা মার্চের দিকে এটার কাজ শেষ হবে। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।